Now it's clear. Hello, sir. That's low. Okay, last class, what did we study? We were actually finishing that. I was explaining you that there is a vessel. I told you there is a vessel, and there were sphere of influence. Yes or no? X, Yes, Y. sir. This part is called what? The surface film. Yes or no? And I was having spheres like this. So what I was telling you? I was telling you that the cohesive forces are so much that they are pulling all the water droplets inside, and because of that, the surface is always in a stress. Okay, 1 minute, guys. हाँ मैडम, मैं क्लास में हूँ, आपको कॉल बैक करूँ? हाँ ठीक. So each of the surface film, every droplet on the surface, okay, is getting pulled downward. So I was telling you that it's like an elastic sheet. When you're pulling the elastic sheet, okay, it will remain like a stretch sheet, and if you drop anything, it will bounce. So because of that, the surface will act like a liquid, like a stretched elastic membrane, and this tension is called the surface tension. Okay, the force due to surface tension acts tangentially to the free surface. That means if you apply anything, it will be tangential. Since this is a plane surface, the tangent also will be along this plane. Understood? So the force will be also be this way, and this is called the surface Yes, tension. sir. Is it clear to all of you? Yes, sir. Is it Clear. clear? Yeah. So if you imagine the liquid to be a, like if you take a small part of the liquid, okay, the tangential will be like this. This will be force on the liquid surface. Understood? All the molecules on this line experience equal and opposite forces. Not that some point here will act more here. Every word the force is uniform. Okay, because the surface is uniform. Surface is what? Surface is a plane surface, and it is a uniform surface. And is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So if you define surface tension, it can be said that it is defined as the, write down, it is defined as the tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line. So this is the imaginary line. The surface tension acts on the both sides of the line, drawn on the free surface of the liquid. This is a free surface of the liquid. I am drawing an imaginary line. The tension will act both sides equally, uniform. Imaginary line drawn on the free surface of the liquid. So we define the surface tension as T, that is equal to force per unit length. Clear, guys? Is it clear? Yes, sir. So what is the SI unit? What is the SI unit? Tension equal to F by L. So can I say force is Newton and length is meter? So can I say Newton per meter? Yes or no? Huh?
So how to find dimension? Dimension will be what? First find out the dimension of force. What is the dimension of force? Force is what? Mass into acceleration. That is mass into velocity per second square. So can I write as m1 this one, this not this meter, m1 l1 t minus 2. Is it clear? फोर्स का डायमेंशन है ना. तो टेंशन का क्या होगा? टेंशन का क्या होगा? पर लेंथ ना, तो l माइनस 1. तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा तो L2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा टेंशन का. क्लियर? ये मिस्टेक किया हम लोगों ने. ये हाँ L माइनस 1 है. तो यहाँ है क्या है? यहाँ है m1 l1 t माइनस 2. तो हमारा t क्या हो जाएगा? t होगा फोर्स बाई l. दैट मीन्स ये होगा m1 l1 t माइनस 2 और ये होगा इंटू l माइनस 1. तो l1 l माइनस 1 हो जाएगा l0, m1 आ जाएगा और t माइनस 2 हो जाएगा. ये डायमेंशन है. क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर हाउ टू फाइंड डायमेंशन? क्लियर और नॉट? Swaroop? Yes, sir. Okay, let's do a small problem. A beaker of radius 10 centimeter. A beaker है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर. ठीक है. Calculate the force of, calculate the tension on any diametrical line on its surface. So diametrical line मतलब this is the imaginary line. Okay. तो अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो what will be the diameter? 20 centimeter. Yes or no? Diameter क्या होगा? Double of radius. No? Yes or no? So can we write into meter? We can write as 0.2 meter. Okay. And it is telling टेंशन का वैल्यू है 0.075 न्यूटन per meter. This is the tension. It is asking you to find what is force. So we will substitute the value T equal to F by L. So what will be F? F is equal to T into L. So you know T. So F will be 0.075 Newton per meter into 0.2 meter. So what will be the value? The meter gone. So 0.075 into 0.2. That will be how much? कितना होगा? 75 into 2 कितना? 150. So 0.015 Newton. Clear? Guys, clear or not? Clear or not? Yes, sir. Clear. Clear, sir. Okay. Understood the problem? You do a problem. I'm giving you a problem. The beaker, the ball has a circumference length of 10 pi. Okay, 10 pi meter. The force is 2 Newton. Find the surface tension. All of you do it and tell me. Understand what is given. Circumference is given. Force is given. Write down the formula. Understand what has to be found. What is given. Then only attempt the problem. Use your brain.
Got it, guys? Hello. Hello, sir. Have you got it? सर एक बार आंसर बताओ ना क्या है? क्या है इसमें? पहले फॉर्मूला लिखो। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बोलता है? T इज इक्वल टू एफ बाई एल। F बाय हाँ अपने को T निकालता है, F गिवन है, L नहीं पता है, तो L कहां से निकालोगे? सर्कमफेरेंस से। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई। तो आर स्क्वायर कितना होगा? 10 पाई बाय पाई इक्वल टू सर 10 मीटर। 10 होगा। 10 मीटर है आर स्क्वायर, सॉरी, अरे यार 2 पाई आर है, सॉरी, 2 पाई आर इक्वल टू 10 पाई। तो आर कितना होगा? आर होगा 10 पाई बाय 2 पाई, तो ये होगा 5। तो आर कितना होगा? 5 मीटर होगा। सर 5 होगा। डायमीटर कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो पता चल गया तेरे को, 2 न्यूटन दिया है, डायमीटर है 10 मीटर, आंसर कितना होगा? 0.2 न्यूटन पर मीटर। इतना सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें क्या इतना सोचने का है? ओके सर। हाँ, नहीं सर आया था बट थोड़ा ये था, श्योर नहीं था। लगाओ ना ऋषभ, पूरा कंप्लीटली प्रॉब्लम का करो। इज नॉट ए सिंपल प्रॉब्लम। सर आंसर यही आया है मेरे को। ये आया, गुड। सौरभ आया? हाँ सौरभ, हाँ सर। कभी आया? तरंग आया? ये प्रॉब्लम, ये आंसर आया? हाँ सर, मेरे को पहले ही आया। Good. तो अभी अगर हम देखोगे तो वाटर के लिए सरफेस टेंशन क्या है? 0.0727, ये स्टैंडर्ड है। और मर्क्यूरी का 04355, सोप सॉल्यूशन का 0.025, ग्लिसरीन का 0.0632। तो तुम देखो, मर्क्यूरी ज्यादा विस्कोसिटी है, जिसका ज्यादा विस्कोसिटी है उसका ज्यादा सरफेस टेंशन है, समझा? हनी का उससे भी ज्यादा रहेगा। क्लियर? जो सबसे ज्यादा ये है, क्या बोलते हैं उसको, विस्कोसिटी है, उसका ज्यादा सरफेस टेंशन है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो वी हैव सीन, हम लोगों ने अभी क्या देखा कि वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड है, कि हमने क्या देखा, जो ए बी सी हमने देखा, ऑल द 3 मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग अ डाउनवर्ड फोर्स एंड बिकॉज द कोहेसिव फोर्सेस आर वेरी वेरी हाई। कभी भी दो मॉलिक्यूल में कोहेसिव फोर्स और एक दो अलग अलग मॉलिक्यूल में, ये ए है, ये है, ये ए है, ये बी है, तो ये अलग मॉलिक्यूल है, अलग मॉलिक्यूल में क्या होता है, कौन सा फोर्स होता है? एडहेसिव फोर्सेस। एंड दो सिमिलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? कोहेसिव फोर्सेस। यस और नो? यस और नो? दो भाई है, ठीक है, दो भाई है, दो भाई में जितना प्यार रहेगा ये और एक दोस्त के अंदर क्या उतना प्यार रहेगा? नहीं। यस और नो? अंडरस्टूड और नॉट? ये दोनों भाई है और ये इसका दोस्त है। तो मुझे बताओ, जितना भी हो दोस्त, बट दो भाई के बीच में जो प्यार रहेगा, क्या वो इसमें प्यार रहेगा? नहीं। तो कोहेसिव फोर्सेस आर ऑलवेज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्सेस। अंडरस्टूड? तो मुझे बताओ, यस सर। अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर स्वरूप खड़ा है, यहाँ पर ऋषभ खड़ा है, तो स्वरूप क्या कर रहा है? ऋषभ को खींच रहा है। किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में खींच रहा है। तो अगर तरंग इसको ऋषभ को लेना चाहेगा तो कैसे लेगा? क्या वो ले पाएगा? उसको एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। मतलब कितना एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा? स्वरूप के इक्वल एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा या उससे ज्यादा करना पड़ेगा? सर उससे डबल करना पड़ेगा। डबल क्यों? उससे ज्यादा करना पड़ेगा। डबल क्यों? अगर मैं इसको 10 हाँ न्यूटन वही। में खींच रहा हूं, तो मैं इसको अगर 10 से ज्यादा खींचूंगा तो स्वरूप इधर आ जाएगा। ऋषभ क्यों? क्योंकि अगर दोनों को सेम फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? तो सिमिलरली अगर तुम्हारा सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अगर नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो मेरे को अगर उसको ऊपर की ओर निकालना है,
ठीक है, उसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो, यस यस और नो। अरे तभी तो आप जाएगा ना ऊपर, ऑलरेडी उनको खींच, ये सब खींचे हुए हैं, because Yes, of sir. this Yes. potential energy is very very high, so extra energy has to be applied. You have to apply, you have to do a work so that any molecule from the inside the liquid into the surface film, तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड कितना, सरफेस एनर्जी। surface energy. Understood? So the extra, write down the definition. The extra energy of the molecules in the surface layer is called the surface energy of the liquid. The extra energy of the molecules in the surface layer is called the surface energy. Sir, surface energy, na? Yes. कोई भी एक सिस्टम, याद रखो, कोई भी एक सिस्टम, उसका वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी। तुम कभी कभी गुस्सा होते हो, जब गुस्सा होते हो तो क्या तुम ऑलवेज गुस्सा होते हो, तुमको नॉर्मल होते हो कि नहीं? जस्ट अ मिनट, Yes, sir. जस्ट अ मिनट। तो लोगों को देखना चाहिए ना, ये सुन नो। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप गुस्सा होते हो, इट इज एक्साइटेड स्टेट, इट इज द एक्साइटेड स्टेट। जब आप गुस्सा होते हो, यू आर हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी, बट कैन यू गाइस टेल मी, आर यू देयर ऑलवेज इन दिस स्टेट, और यू ऑलवेज गुस्सा होने के बाद कभी ठंडा होते हो? यस और नो, यस और नो। Yes, sir. सिमिलरली एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, हम लोग भी एक सिस्टम है, हम लोग भी एक सिस्टम है। हम लोग पानी गर्म करते हैं, पानी उबलता है, बट क्या वो ऑलवेज वैसा रहता है? नहीं, ठंडा होके नीचे आता है। तो कोई भी सिस्टम ऑलवेज अटेंड्स मिनिमम लोएस्ट स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लोएस्ट स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। is it clear to all of you? हाँ सर। Yes, sir. So the universal property है, it is always that any system minimizes its potential energy, and because of that what, the water always tries to reduce the surface area, always the reduce the surface area. Remember, जो वाटर का ड्रॉपलेट है वो कैसा है, कैसा रहता है, सर्कल रहता है कि नहीं, स्फीयर जैसा, यस और नो? कभी भी देखा है कि वाटर Yes, ड्रॉपलेट sir. ऐसे गिरता है, कभी देखा है, या कभी ऐसा गिरता है, कभी देखा है? क्यों? इट इज ऑलवेज दी व्हाट, स्फेरिकल सरफेस एरिया। क्यों? स्फीयर जो है वो ऑलवेज मिनिमम सरफेस एरिया है। क्यों? अगर मेरा और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं रखूंगा तो उसका एरिया ज्यादा रहेगा, और ज्यादा एरिया रहेगा मतलब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। क्लियर? Yes, sir. Is it clear to all of you? क्वेश्चन में आ सकता है, why is the droplet, rain drop forms a spherical surface, spherical size? You say that any system will always be a minimum, will have minimum surface area to what, to reduce the surface energy और minimum potential energy। ज्यादा surface area मतलब ज्यादा surface tension, ज्यादा surface tension मतलब ज्यादा surface energy। कम सरफेस एरिया मतलब कम एरिया मतलब कम सरफेस टेंशन, कम सरफेस टेंशन मतलब कम सरफेस एनर्जी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड। सो नाउ एक काम करो, रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन करो।